Hello students, in this video we will discuss haloalkanes and haloarenes, the first chapter of organic chemistry. So the topics to be discussed in this chapter are, first of all, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ haloalkanes and haloarenes. Next, nature of carbon halogen bond in haloalkane and haloarenes. Then we will study the methods of preparation of both. Physical properties, in which we will discuss solubility, boiling point and dipole moment of haloalkanes and haloarenes. Then there is chemical properties of each of the haloalkane and haloarenes, and from these chemical property a very important topic is nucleophilic substitution reactions, SN1 and SN2 reaction. This is very important topic. Question is always asked from this topic every year in the final examinations. And the last topic is commercially important halogen compounds. For example, we have freon, DDT and benzene hexachloride. These three compounds are commercially important halogen compounds. We also discuss these compounds. Here I have written all the named reactions that are given in this chapter. Finkelstein reaction, Hunt's-Diecker reaction, Markovnikov and anti-Markovnikov addition or rule, Groves reaction, Sandmeyer and Gattermann reaction. These are particularly very important reactions, Sandmeyer and Gattermann. Walsh-Schiemann reaction, Woods reaction is also very important. Friedel-Crafts reaction, important reaction from the chapter. Sertzeff rule, Dawes process, वुड्स फिटिग रिएक्शन एंड अल्मैन रिएक्शन. अगर हम इस चैप्टर को थोड़ा स्ट्रैटेजिकली पढ़ते हैं, अगर हम सिर्फ नेम्ड रिएक्शन को ही कवर अप कर लेते हैं, सारी नेम्ड रिएक्शन इस चैप्टर की, एंड SN1 SN2 रिएक्शन को कवर अप कर लेते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि मोर देन 50% ऑफ द चैप्टर इज़ कवर्ड फ्रॉम दीज टू टॉपिक्स ओनली. सो हमने इसको स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं कि व्हाट आर haloalkanes एंड haloarenes. सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि haloalkane haloarenes कौन से कंपाउंड्स हैं. कंसिडर आई हैव अ हाइड्रोकार्बन दैट इज़ मीथेन. मैंने क्या करा, इसका एक H निकाला, ये रहा CH3 बना. अब एक H की जगह पे मैंने डाली हेलोजन. सो वी गॉट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन haloalkane. दिस इज alkane and we got haloalkane. Similarly, अगर मैंने एक और H निकालूँ, इसके दो H निकाले हैं और दो ही X डाले हैं, सो वी ऑल्सो गॉट अनदर हेलोजन कंपाउंड विच इज़ कॉल्ड डाईहेलो कंपाउंड. सो वी कैन रिप्लेस एनी नंबर ऑफ H and we can add any number of X atom to form corresponding haloalkanes. Similarly, if we have benzene, aromatic compound, एरोमेटिक रिंग का हमने एक H निकालना है और उसकी जगह पे एक X डालना है. सो वी विल गेट अ haloarene, राइट. सो बेसिकली haloarenes एंड haloalkanes क्या हैं? ये हैं कंपाउंड्स व्हेन वन और मोर हेलोजन एटम, हम एक हेलोजन भी डाल सकते हैं, दो हेलोजन एटम भी डाल सकते हैं. वन और मोर हेलोजन एटम ऑफ एलिफेटिक, अगर हमारे पास ये एलिफेटिक है, और एरोमेटिक, अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, आर रिप्लेस्ड बाय हेलोजन. वन और मोर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना है किससे? बाय हेलोजन एटम. सो वी गॉट haloalkane और haloarene. बोथ दीज आर, जहाँ मैंने एक एक H निकाला है, एक एक हेलोजन डाली है, तो सो बोथ दीज आर monohalogen derivatives, right? So let us discuss about the classification of haloalkanes and haloarenes. First of all, we will do the classification of haloalkanes. Haloalkanes are monohalogen derivatives जिसमें एक H की जगह एक ही Cl है, Cl, Br, I, F कुछ भी हो सकता है, ठीक है. सो मोनोहेलोजन डेरिवेटिव जिसमें एक हेलोजन है. डाईहेलोजन डेरिवेटिव, डाईहेलोजन एज द नेम सजेस्ट विच कंटेन टू हेलोजन. अब जो दो हेलोजन हैं वो दोनों हेलोजन सेम कार्बन पे भी हो सकती हैं, और दीज टू हेलोजन आर ऑन डिफरेंट कार्बन ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 3 कार्बन है तो हेलोजन जो है ऐसे भी प्रेजेंट हो सकती है और
ऐसे भी प्रेजेंट हो सकती है. So these there are two kind of dihalogen compounds. Geminal, when both the halogen are present on the same carbon atom. Vicinal halides are those which are in which the halogen are present on two adjacent लेना है, एडजेसेंट कार्बन ही कंसिडर करने हैं, ये नहीं कि 1-3 पोजीशन ही लेने की, एक Cl यहाँ पे और एक यहाँ पे है, नो. विसिनल हेलाइड्स आर दोज इन विच Cl आर प्रेजेंट, 2 Cl आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स. So next are allyl halide. So first of all we should know what is allyl group. So any group which has this linkage CH2 डबल बॉन्ड CH2. अब इस डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन है, डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ अगर हम कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा दें, देन दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एलाइल. अगर हम यहाँ पे ये जो है इसको हम एलाइल कहते हैं, तो इसको हम कहेंगे हेलोजन लगा है तो एलाइल हेलाइड, OH लगाएगा तो एलाइल अल्कोहल अकॉर्डिंगली. सिमिलरली इफ आई हैव this kind of compound CH3 CH2 CH double bonds CH3. So in this compound we have to consider the doubly bonded carbon. डबली बॉन्डेड कार्बन से इमीडिएटली जो साथ वाले कार्बन है, जैसे ये दिस इज ऑल्सो एलाइल कार्बन एंड ये, क्योंकि ये भी डबली बॉन्डेड के बिल्कुल एडजेसेंट वाला है, दिस इज ऑल्सो एलाइल कार्बन, राइट. सो एलाइल ग्रुप इज द डबली बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट वाला कार्बन, दैट इज कॉल्ड एलाइल कार्बन. ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं एलाइल ग्रुप. सो एलाइल कार्बन के साथ अगर हेलोजन लगा है तो एलाइल हेलाइड. सिमिलरली हेयर आई हैव टेकन दिस. अगर हम यहाँ से लेते हैं 1 2 3, थर्ड नंबर पे Cl लगा है, यही कंपाउंड ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे Cl, दिस इज ऑल्सो एलाइल क्लोराइड एंड दीज टू कंपाउंड्स आर सेम. नेक्स्ट इज विनाइल हेलाइड. विनाइल ग्रुप इज डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ इमीडिएटली साथ ही Cl लगा हो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ ही हेलोजन लगी है, देन दिस हेलोजन और एनी अदर फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो दिस इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप एंड द कंपाउंड इज कॉल्ड विनाइल हेलाइड. लाइक this is also another example. Next are alkynyl halide. Alkynyl halide are in which there is triply bonded carbon atom and on that triply bonded carbon there is any functional group, right. So next is the next हमारे पास है primary, secondary and tertiary halide. ये basically these are monohalides, right. These are monohalides. अब depending upon the nature of carbon, जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दैट कार्बन वी हैव प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेलाइड. फॉर एग्जांपल आई हैव अ मीथेन मॉलिक्यूल. अब मीथेन मॉलिक्यूल का मैंने क्या करा, एक H निकाला, उसकी जगह पे Cl डाला, दिस इज कॉल्ड मिथाइल क्लोराइड. अब हमने ये देखना है इस कार्बन को, मिथाइल कार्बन के H रिप्लेस करके अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करने हैं. जब इसका एक H रिप्लेस करा, मिथाइल क्लोराइड को ही बेसिक मान के चलना है. मिथाइल क्लोराइड का एक H रिप्लेस करा मिथाइल के साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ एक अल्काइल ग्रुप लगा तो प्राइमरी हेलाइड. अब दूसरा 2 रिप्लेस करे, 2 अल्काइल ग्रुप लगा दिए तो सेकेंडरी हेलाइड. तीनों H निकाल के 3 अल्काइल ग्रुप लगा दिए, सेंट्रल कार्बन डू नॉट हैव एनी H, सो इट इज कॉल्ड टर्शरी हेलाइड, right. So here these are the common names. Isopropyl chloride. Isopropyl means सेकेंड नंबर पे जो कार्बन है, या फिर जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगी है, that contain 2 alkyl groups. Tertiary butyl chloride, when the central carbon on which the halogen is attached contain 3 alkyl groups, right. So next is the classification of haloarenes. Haloarenes are of 2 types. न्यूक्लियर हेलोजेंस, न्यूक्लियर हेलाइड्स और न्यूक्लियर हेलोरीन्स और साइड चेन हेलाइड्स. न्यूक्लियर मीन्स द हेलोजन ग्रुप इज अटैच डायरेक्टली टू द बेंजीन रिंग, जैसे यहाँ पे है जो Cl है वो डायरेक्टली बेंजीन के साथ लगा है. लेकिन साइड चेन हेलाइड जिसको हम एराइल अल्काइल हेलाइड भी कहते हैं, यहाँ भी हेलोजन लगा है बट
it is not attached to the benzene ring directly, it is linked to the alkyl group which is linked to the benzene ring. मीन्स जो बेंजीन रिंग के साथ साइड चेन लगी है, साइड चेन के साथ जो हेलोजन लगी है, इस ग्रुप को हम कहते हैं अराइल अल्काइल हैलाइड्स और साइड चेन हैलाइड. फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लिख लेते हैं इसमें. फॉर एग्जांपल आई हैव दिस मॉलिक्यूल CH2CH2Cl. सो दिस इज ऑल्सो अराइल अल्काइल हैलाइड. अब न्यूक्लियर हैलोजेंस में एक चीज़ और आती है, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन यहाँ मैंने लिए हैं. ऑर्थो पोजिशन इज व्हेन 2 halogen atoms are there and halogen are present at 1,2 position, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन. 1,3 position मेटा, 1,4 position पैरा. फर्स्ट नंबर वाले जहाँ Cl लगा उसको 1 नंबर दिया. 1 2 3 4 5 6 कार्बन है. 1 4 पे अगर हेलोजन लगा है तो पैरा, 1 3 पे लगा है तो मेटा, 1 2 पे लगा है तो ऑर्थो. अब जैसे मान लो मैंने क्लोरोबेंजीन लिखा है ऐसे, दिस इज क्लोरोबेंजीन. अब अगर मैं Cl यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिखूँ और यहाँ लिखूँ, हेयर द concept of ortho meta para does not arise, has no meaning. ऑर्थो मेटा पैरा तभी आएगा जब 2 हेलोजन होएंगे, एक हेलोजन के रिस्पेक्टिव दूसरा लेना. दीज ऑल कंपाउंड्स आर सिमिलर, क्योंकि यहाँ जहाँ हेलोजन लगा है हम वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. सो ऑल ऑफ दीज आर क्लोरोबेंजीन, 1 क्लोरोबेंजीन ओनली. सो ऑर्थो मेटा पैरा जो है वो तभी आना है व्हेन देयर आर 2 हेलोजन और देयर आर 2 फंक्शनल ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू 1. अगर दूसरे की पोजीशन 1 2 है, ऑर्थो मेटा पैरा अकॉर्डिंगली, राइट. सो नेक्स्ट लेट अस डिस्कस द नेचर ऑफ CX बॉन्ड. एज वी नो द CX in CX बॉन्ड in halogen there is CX polar bond. polar bond बोला है मैंने. why is it polar? because halogen atom is more electronegative, it will withdraw the electron of this bond toward itself, so carbon become electron deficient. It means the CX bond in case of alkyl halide. Here I am taking the example of alkyl halide only, or explaining the nature of CX bond in alkyl halide. In aryl halide we will discuss this nature later on. So due to polar nature the carbon acquire partial positive charge. ये खुद पॉजिटिव हो गया, it means इस पे कौन सी चीज़ें अटैक कर सकती हैं which itself carry a negative charge. for example nucleophile. nucleophile के खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, they will attack on positively charged carbon atom. it means जो alkyl halide हैं they will show nucleophilic reactions. clear? so next is the ये मैंने थोड़ी बॉन्ड लेंथ डिस्कस करी है. एज वी नो जैसे जैसे हेलोजन का साइज़ बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ करेगी. बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ करेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी, बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा. सो बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो है ऑर्डर है वो ये रहेगा. बॉन्ड स्ट्रेंथ CF की बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस बॉन्ड. सो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी. सो लेट अस डिस्कस द मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ alkyl halide. We will discuss this method of preparation in the next video.